want to recall what we have discussed in the first. So what we have discussed, what we have shared in the last session. Last session में anybody remember what we have shared? Yes. Goal, passion, purpose. So how will you define purpose? What do you mean by purpose? Yes. Purpose is? But getting high marks in board is not a purpose. That is a goal. Okay, anybody can tell the purpose? Anybody remember in the first session we have what we told about purpose? Yes. The purpose is something which gives meaning to our life. Which? Gives meaning to our life. Okay, good. Meaning to life. Okay. And it gives us a higher sense of fulfillment in our life. Higher sense of fulfillment. Good. Spiritually, it gives a career or it gives a just making ourselves a better person. Okay. Basically, purpose. Everybody has some purpose. When you stand on this earth, जब आप पैदा हुए, जब भगवान ने आपको भेजा, तो he has encoded some purpose with you. आपके साथ एक purpose लगा दिया भगवान ने, एक chip लगा दी, जिसमें purpose था. अब वो chip जो है, depends upon us कि उस chip को हमने अच्छे से उसको encode किया या नहीं किया. अब कहेंगे very less people are able to encode the chip, and we want that you should encode the chip in this young age. आप लोग 12th में हैं, तो I want that we should all know our purpose. अगर हमें purpose पता चल जाएगा, then we are able to find out our passion, and from the passion we are going to make our goal. Okay? Are you understanding? क्योंकि हमें purpose पता होना बहुत जरूरी है. जो आप ये बात कर रहे हैं, that is all is right, but it is all bookish knowledge. But the thing is, I am just in simple way I will decide. Purpose जो है, God has given some purpose to every person. और वो purpose कैसे achieve कर सकते हैं हम लोग? By क्योंकि God wanted you should do something for yourself and for others. मतलब God wanted when you are sent on earth, you should add value to yourself and add value to others people. Other people से सबसे ज़्यादा important कौन है? Parents, teachers, friends, siblings, brothers, sisters, और कौन important है? और सबसे important कौन है? Self, myself. सबसे ज़्यादा important तो मुझे अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है, और फिर अपने पेरेंट्स के, अपने स्कूल की, अपने टीचर्स के, अपने सिस्टर ब्रदर फ्रेंड, अपने फ्रेंड्स, फिर आगे जो और रिलेटिव हैं, फिर आगे ये जो सर्कल है वो मूव होता है, स्पाइरल है कि इट्स गोन ऑन मूविंग. फिर इसके बाद सोसाइटी, नेचर, ये सारा चीज़ें सर्कल में आता है. डिपेंड्स अपॉन किसको आप ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं. तो किसको प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा देनी है आपको? सेल्फ को. सेल्फ को मतलब ये नहीं कि यू हैव टू बिकम सेल्फिश, यू हैव टू बी सेल्फ लव. अपने को प्यार करना है. ओके? तो सबसे इंपॉर्टेंस देंगे आपने अपने आप को. और अपने आप को इंपॉर्टेंस कैसे देंगे? जब आप जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको पूरा करेंगे, और जब आप पर्पस अचीव कर लेंगे, उससे पैशन निकालेंगे, गोल को अचीव कर लेंगे, then you are giving importance to yourself. Okay? तो purpose is adding value to yourself and others. Others में it's your priority किसको देना, और सबसे ज़्यादा देनी priority किसको? अपने पेरेंट्स को, टीचर्स को, सिस्टर ब्रदर, फ्रेंड्स, फिर सोसाइटी, फिर नेचर, ये सब चीज़ें आपको लेके और प्रायोरिटी. ओके? तो पर्पस होगा by adding value to yourself and others. आप अपने की वैल्यू ऐड कैसे करेंगे? How will you add value to yourself? आपकी वैल्यू कब ऐड होगी? जब when people are going to appreciate you, acknowledge you, when you get
फील गुड अबाउट योरसेल्फ। मैं कब गुड फील करूंगा? जब मैं अच्छा करूंगा। अगर मुझे पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करूंगा तो आई विल फील गुड, I will get appreciation from my parents, I will get appreciation from everybody and I will get good marks। तो अपनी वैल्यू आपके हाथ में है। वैल्यू कैसे बनेगी? जो काम आपको दिया है, जो काम करना है वो टाइम भी कर रहे हैं। तो आपका 12th क्लास में है तो आप कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं? अपने को वैल्यू देंगे। अपने को वैल्यू कैसे देंगे? जो काम आपको करना है उसको फॉलो करना। और वो तभी होगा जब आप जो 5 वैल्यूज जो स्कूल की उसको फॉलो करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे देन यू आर एडिंग वैल्यू टू योरसेल्फ। और क्या वैल्यूज है हमारी? एक्सेप्टेंस। जब हम एक्सेप्ट करेंगे अपने आप को, मैं कैसा दिखता हूँ, कि क्या मेरी हैबिट्स है, क्या है, मतलब बेसिकली अपनी लुक्स को एक्सेप्ट करना है, अपने नेचर को एक्सेप्ट करना है और सबको एक्सेप्ट करना है। और ये भी एक्सेप्ट करना है कि आई एज अ स्टूडेंट आई हैव टू स्टडी, मुझे अच्छे मार्क्स लाने, ये भी एक्सेप्ट करना है। और अच्छे मार्क्स कब आएंगे? हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क भी करना है और स्मार्ट वर्क भी करना है। खाली सोने से, मोबाइल यूज करने से, गॉसिप करने से या ज्यादा सोने से, मतलब इन चीजों से तो आपकी कोई वैल्यू नहीं बननी है, क्योंकि आप अपना पर्पस अचीव करना चाहते हैं। तो आपको क्या करना होगा? आपको थर्ड वैल्यू जो है सेल्फ डिसिप्लिन में रहना होगा। सेल्फ डिसिप्लिन का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ डिसिप्लिन? You are doing whatever you have to do yourself. Nobody is telling you. Parents नहीं बोल रहे कि सुबह उठ जाओ, स्कूल जाना है। You are ready, getting ready yourself. पढ़ाई कर रहे हैं अपने आप, पेरेंट्स नहीं बोल रहे पढ़ाई कर लो। अच्छी डाइट लेनी है, कोई बोल नहीं अच्छी डाइट लेनी है, आप खुद ही ले रहे हैं। डिसिप्लिन में टाइमली यू आर टेकिंग एवरीथिंग, रूटीन बनाई हुई है, प्लानिंग कर रहे हैं, शेड्यूल बना रहे हैं। तो आपको सेल्फ डिसिप्लिन में रहना है। और सेल्फ डिसिप्लिन कब पॉसिबल होगा? जब हम अपने माइंड को मास्टर करेंगे। हमारा माइंड कैसा था? मंकी की तरह होता है। वो कभी एक इस पेड़ को कभी इस पेड़ को कभी इधर चला जाता, कभी इधर चला जाता। उसको क्या करना है? उसको मास्टर करना है, उसको कंट्रोल करना है, उसको टेम करना है। अब वो कैसे टेम होगा? हमारा जो माइंड है, फोकस से, कंसंट्रेशन बढ़ाने से। जो काम कर रहे हैं उसको अच्छे से करने से, वो हमारा रिचुअल होगा माइंडफुलनेस। कि जो कर रहे हैं उसमें आप फोकस होंगे। तो जो भी मैं आज आपको बता रहा हूँ, मैं इसको साक्षी मैम, साक्षी मैम इज देयर? तो मैम आप नोटिंग कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर रहे हैं? आप नोट कर लीजिए मैम, क्योंकि you have to talk to them one to one, or you have to, when with the classes, then you get time, talk to them what you have discussed। क्योंकि जो आपसे मैं बात कर रहा हूँ, अगर उसको आप फॉलो नहीं करेंगे, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, उसको एक्शन में नहीं लाएंगे, then there is a waste of time and energy from my side also, and you are wasting your time also and your energy also। Okay, तो implementation, एक्शन में लाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। whatever we are going to discuss today, what I am going to share with you। ओके, तो आपको सेल्फ डिसिप्लिन में रहना है। उसके लिए आपको क्या करना है? अपने माइंड को मास्टर करना है। और माइंड वैसे कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स ऑफ माइंड। कौन से होते हैं? कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। वैसे एक और माइंड भी होता है, दैट इज अनकॉन्शियस। कॉन्शियस क्या होता है? कि जो मुझे मालूम है, व्हाट आई नो। और सबकॉन्शियस माइंड है कि आई नो के दिस व्हाट आई नो एंड दिस आई डोंट नो। और अनकॉन्शियस माइंड है आई डोंट नो बट आई डोंट नो। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मुझे नहीं पता कि मुझे पता ही नहीं है। इफ यू आर हियर, अमेरिका में क्या हो रहा है आपको नहीं मालूम है, तो वो अनकॉन्शियस माइंड को मालूम है। तो हमें कॉन्शियस माइंड पे वर्क करना है इफ यू वांट टू मास्टर। जब कॉन्शियसली आप अपने कॉन्शियस माइंड को अपना मास्टर कर लोगे,
तो सबकॉन्शियस माइंड भी आपके कंट्रोल में आता है। जैसे कि हैव यू हर्ड द स्टोरी ऑफ अलादीन एंड मैजिक लैम्प। अलादीन क्या है, अगर उसको माइंड से अगर आप उसको रिलेट करें, अलादीन क्या है? अलादीन क्या है? इट्स अ कॉन्शियस माइंड। और मैजिक लैम्प क्या है? सबकॉन्शियस माइंड। और अलादीन जो कमांड देगा जिनी को, लैम्प को, जिनी को जो कमांड देगा वही होगा। और अगर आपका अलादीन ही सोया हुआ है, अलादीन ही कुछ नहीं कर रहा, तो जिनी क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, वो भी सो जाएगा। तो आपको सबसे पहले अपने आप को जगाना है। जगाने का मतलब अपनी कॉन्शियसली आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है। कमांड देनी है कि मुझे ये काम करना है, उसकी प्लानिंग करनी है, शेड्यूलिंग करनी है, डिसिप्लिन में रह के, और उसको आपको सबकॉन्शियस माइंड उसको अपने आप ही करेगा। सबकॉन्शियस माइंड के बारे में थोड़ा आगे डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड हैव ए 90% पावर इज सबकॉन्शियस माइंड और 10% पावर है कॉन्शियस माइंड के पास। अलादीन के पास सिर्फ कमांड देने की पावर है। कमांड देना जो चाहता है वो करवा सकता है। करता कौन है? जिनी। और जिनी कौन है? हमारा करता हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। लेकिन हमारी जो 10% की पावर है उसको हमने कम से कम 2% पावर तो हमें अपनी यूज करनी है। और वैसे हम बेसिकली 5 to 10% पावर यूज करनी है। वैसे हम लोग 1% पावर यूज करते हैं अपने 10% ऑफ माइंड की। I'm not talking about 90% माइंड की, इसको छोड़ दीजिए। आपको अपने माइंड की कम से कम 5 to 6% माइंड यूज करना है। Anybody has seen the movie Lucy? Lucy करके मूवी है, इंग्लिश मूवी है, किसी देखा आपने? You heard about that? तो उस वो वैसे मूवी थोड़ा नेगेटिव है। उसमें ये बताया गया है कि अगर हमारा माइंड 100% एक्टिव हो जाए, डेवलप हो जाए, तो हम लोग वी कैन गेट एवरीथिंग व्हाटएवर वी वांट। यूनिवर्स की सारी नॉलेज हमें मिल जाएगी। जो हमारे जो अनकॉन्शियस माइंड हमारा एक्टिव हो जाता है, कॉन्शियस माइंड भी होता है, सबकॉन्शियस भी हो जाता है, तो हमें पूरी नॉलेज हो जाएगी। और उस मूवी में लास्ट में दिखाया है कि वो उसका 100% जब एक्टिव हो जाता है माइंड, तो वो एक पेन ड्राइव के अंदर पूरी की पूरी हिस्ट्री, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, तीनों वो एक चिप में एवरी इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन दैट। इतना पावरफुल है हमारा माइंड। और हम कितना यूज कर रहे हैं? 1% ओनली। जस्ट इमेजिन अगर आपने 5% यूज कर लिया तो यू विल बिकम आइंस्टाइन की तरह। आइंस्टाइन ने ये 6 to 7% ऑफ हिज माइंड, आइंस्टाइन। और ये बिकम अ बिग साइंटिस्ट। जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं, दे आर यूजिंग 3 to 5% ऑफ देयर माइंड। How you have to just the practice of all the 10 rituals what I am going to share with you। अगर वो 10 rituals और ये 5 values को अगर आप thoroughly religiously अगर फॉलो करते हैं, तो you can develop your mind in 5%। I will not say more than 5%, क्योंकि उसके लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं। There are 100 of things 100% करने के लिए। बस अगर 5% के लिए आपको 5 जो है वैल्यूज है और 10 रिचुअल्स को प्रैक्टिस करना है। और ये 10 रिचुअल्स जो है और 5 वैल्यूज है, दिस इज ऑलरेडी मेंशन, बट इतना ज़्यादा एलोबरेट नहीं किया हुआ इस बुक में। इसमें सब वैल्यू और रिचुअल्स के बारे में ब्रीफ किया होगा। तो व्हाटएवर आई एम गोइंग टू से, यू जस्ट हैव टू इंप्लीमेंट एंड मेक इट इनटू एक्शन। ओके ओके, तो आपको क्लैरिटी होगी कि हमारा पर्पस है कि वी हैव टू ऐड वैल्यू इन आवर लाइफ एंड ऐड वैल्यू इन पेरेंट्स लाइफ, अदर्स लाइफ, एटसेट्रा लाइफ। ओके, और आप पेरेंट्स की लाइफ में कैसे आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं? जो आपका पर्पस है, बाय मेकिंग योर पेरेंट्स हैप्पी, प्राउड, हैप्पी। और हैप्पी कैसे कब होंगे पेरेंट्स? जब आप सक्सेसफुल होंगे। तो सक्सेसफुल कब होंगे आप? जब आप अपना गोल अचीव करेंगे। गुड। अब आपका जो गोल क्या है, इस वक्त का गोल क्या है आपका?
get good marks in your board exam depending upon your capability and depending upon your desire, कितना चाहते हैं आप. That will discuss in visualization, कितना आप visualize करेंगे, we will talk about that later. तो आपके पेरेंट्स तब खुश होंगे जब आपके गोल सेट होगा और आपके मार्क्स आएंगे, तो पेरेंट्स विल फील प्राउड एंड योर पेरेंट्स आर सेंट टू दिस वेरी गुड स्कूल, आपको अच्छे स्कूल में भेजा हुआ है, दे स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी फॉर दैट. तो आपको कैसे उनकी वैल्यू ऐड करेंगे, आप अपनी वैल्यू ऐड करेंगे, जो वो जो स्पेंड कर रहे हैं उनके रिटर्न में आप उनको यू विल गिव द गुड मार्क्स, अच्छे मार्क्स देंगे उनको. और अच्छे मार्क्स देने के लिए क्या करना होगा आपको? हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क. सिर्फ हार्ड वर्क से कुछ नहीं होगा, स्मार्ट वर्किंग करना होगा. और जो 10 रिचुअल्स हैं दैट इज अबाउट स्मार्ट वर्किंग. हार्ड वर्क तो आपको करना ही है, बट आई विल टेल यू 10 रिचुअल्स, 10 things you have to do, 10 tools I am going to give you which will make you smart, focused. Okay? तो हम लोग अपने पेरेंट्स को खुश कर सकते हैं, टीचर्स को खुश कर सकते हैं by getting good marks and by doing hard work and smart work. Okay? अब हमें पर्पस पता चल गया. अब हम सोसाइटी को कैसे खुश कर सकते हैं? How we can add value to our friends? How we can add value to school? कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं स्टूडेंट की? बाय बीइंग गुड, बाय बिहेविंग गुड. अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छे से बिहेव करना, किसी को बुली नहीं करना, किसी को हर्ट नहीं करना बाय यूजिंग अब्यूजिव लैंग्वेज, किसी को तंग नहीं करना. जैसे मैंने देखा कि बच्चे पीछे से बच्चों को मार देते हैं और दिखाने के कुछ नहीं हुआ और वो कितना हर्ट होता है. आपको तो 1 मिनट का मजा आया, बट द चाइल्ड, बच्चा जो है कितना हर्ट हुआ, उसकी कितनी सेल्फ स्टीम कितनी लो हो गई एंड ही फील हेल्पलेस कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा क्योंकि मुझे पता नहीं किसने मारा है. और हमारी जो हमें फाइट होती है उसमें कितना हर्ट करते हैं, अपने आप को हर्ट करते हैं, पेरेंट्स को हर्ट करते हैं. पेरेंट्स कितने लो फील करते हैं मैंने आप कॉल्ड एंड दे आर टोल्ड के इन्वेस्टिगेट करते हैं, सस्पेंड करते हैं, कुछ कॉन्सिक्वेंस आपको बताते हैं, देन दे फील वेरी लो. ओके, तो आपको और आप सोसाइटी की कैसे, नेचर को कैसे आप ऐड वैल्यू कर सकते हैं? बाय प्लांटिंग ट्रीज. बाकी टेक केयर ऑफ अर्थ में कोई भी चीज है उसको टेक केयर कर रहे हैं. और स्कूल की कैसे आप ऐड वैल्यू कर सकते हैं? बाय मेंटेनिंग डेकोरम, कोई चीजों को नुकसान नहीं कर रहे, कोई चीज तोड़ नहीं रहे हैं, कोई चीज से स्ट्रिपलिंग नहीं कर रहे हैं, दीवार सब अपने स्कूल को अपने घर की तरह रख रहे हैं. Like that you have to decide how we can add value to different life. That is the purpose. इसी पर्पस के लिए आए हैं. इसमें से कई लोग ऐसे होंगे, कुंभकर्ण होंगे, जिनको सोना ही उनका पर्पस है. तो you have to wake up. Okay? कुंभकर्ण नहीं बनना है. You have to wake up. You have to master your mind, and you have to practice all the values and rituals what I am going to discuss in between. ओके, तो हमने अभी तक बात करी है पर्पस की. ओके, अब पर्पस आपको क्लियर हो गया? टू ऐड वैल्यू पीपल. अब लोगों की वैल्यू में वैल्यू जब ऐड करोगे तो व्हाट विल हैपन? दे विल बिकम वेरी हैप्पी. जब आप अच्छे मार्क्स आएंगे तो किसको खुशी मिलेगी? आपको, पेरेंट्स को, टीचर्स को, स्कूल विल फील प्राउड. तो हैप्पीनेस इज आवर अल्टीमेट पर्पस एंड हैप्पीनेस वी गेट इट बाय adding value to people's life and our life. तो पर्पस आपका क्या है? to be happy and make others happy. others में आपके आगे. और कैसे हैप्पी करेंगे सबको? या अपने आप को? by adding value to myself and people who I love and other people who I care for, और for the society and for nature and for everything. तो ये आपका पर्पस होगा. The second important thing is passion. So how much time we have? कितना time है? 1 hour session and we started at what time? 12. So 12 to 1. Still we have time, so I can discuss all the things. Purpose भी discuss कर लेंगे, passion भी कर लेंगे, goal भी कर लेंगे. और डिटेल में हम लोग इसका we will talk later. इसको we will have regular session with you. बोर्ड के एग्जाम से पहले तक हमारे रेगुलर सेशन होंगे आपके साथ
क्योंकि आपको सबको अपना पर्पस अचीव करना है, पैशन को आइडेंटिफाई करना है और गोल को अचीव करना है. ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज द पैशन. आप पैशन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हाउ विल यू आइडेंटिफाई द पैशन? What do you love to do? What do you love to do? These are four things you can identify your passion. What are the 4 points? Strength, weaknesses, so it's okay. But the thing is, how we can identify strength, weaknesses? So we have to identify later. पहले हमें अपना passion identify करना है. Weakness और strength से अपना passion आप ढूंढ सकते हैं. But 4 things, 4 elements are there to find out your passion. First, what is the first one? I think discussed in the last time I discussed about that. Happiness, yeah. What I love to do. What make me happy or what I love to do. तो पहला जो passion वो होगा जिसका ये जो element है वो उसके साथ मैच करता है. First is what I love to do, what make me feel happy. Okay? वो काम जिसको करने में मेरे को बहुत मजा आता है, मैं भूल जाता हूँ. जैसे जो आर्टिस्ट होते हैं, आर्टिस्ट को आप कैनवस दे दो, पेंट ब्रश दे दो और पेंट दे दो, वो दे विल डू द पेंटिंग. वो इतना मजा आता है, वो भूल जाते हैं. वो 2-2 घंटे 3-3 घंटे पेंटिंग करते हैं, खाना वाना सब भूल जाते हो, पेंट में इतना मस्त हो जाते हैं. दैट इज अ पैशन. तो फर्स्ट थिंग है व्हाट आई लव टू डू, व्हाट मेक मी हैप्पी. अब इसमें काफी स्टूडेंट होंगे कि सोच रहे होंगे मेरा पैशन तो सोना है, मुझे सोना बहुत अच्छा लगता है. तो यू हैव टू फाइंड आउट द पॉजिटिव पैशन, नॉट नेगेटिव वन. मेरे को मोबाइल खेलना बहुत अच्छा लगता है, मेरा पैशन है. दैट इज नॉट अ पैशन, दैट इज ऑब्सेशन. तो मैं आपको पैशन, कंपैशन और ऑब्सेशन के बारे में अभी बताइए. ओके, तो आपको पॉजिटिव पैशन ढूंढना है जो आपको अच्छा लगता है. सोना, मोबाइल करना, सारा दिन बाहर आवारागर्दी करना, घूमना करना, वो पैशन नहीं है. ओके, तो आपको अपना पैशन पॉजिटिव देखना है. फर्स्ट इज व्हाट आई लव टू डू, व्हाट मेक मी हैप्पी. ओके, सेकंड एलिमेंट क्या है? यस, एनी गेसेस क्या हो सकता है? फ्यूचर में If there is a future career based on. ओके, फ्यूचर में उसकी ओके, आई विल कम टू दैट पॉइंट, नियर टू दैट. सेकंड जो एलिमेंट है दैट इज व्हाट आई एम गुड एट, किसमें मैं अच्छा हूँ. सपोज मान लो कि मेरे को मैथ्स के सम करने बहुत अच्छे लगते हैं. आई लव मैथ्स. मुझे मैथ्स देख के बड़ा मजा आता है. मुझे फाइनेंस बहुत अच्छा लगता है. I feel good about that. I feel happy. But मैं जब मैथ्स के सम करने बैठता हूँ तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ. मेरी कैलकुलेशन ठीक नहीं है, मेरे को मेरा दिमाग नहीं लगता उसमें अच्छा नहीं हूँ लेकिन अच्छा लगता है. तो सेकंड चीज है कि आई एम गुड एट, उसमें अच्छा होना भी बहुत जरूरी है. मैं बहुत बड़ा राइटर बनना चाहता हूँ, ऑथर बनना चाहता हूँ, बुक्स लिखना चाहता हूँ, लेकिन मेरी लैंग्वेज जो है, हिंदी है या इंग्लिश है, वो इतनी अच्छी नहीं है. तो मैं बन सकता हूँ ऑथर? नहीं बन सकता. तो आपका क्या है कि फर्स्ट आई लव व्हाट आई लव टू डू, सेकंड व्हाट आई गुड एट. सो दोनों आप साइंस करने में बड़ा मजा आता है, एक्सपेरिमेंट करने में बड़ा मजा आता है. फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स, फिजिक्स का सम करना या आपको अकाउंट बहुत अच्छा लगता है. और आप जब करते हैं तो मजा भी आता है और आप कर भी पाते हैं. और आपके अकाउंट्स में या आपके साइंस में मार्क्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं. इट मींस आपका जो एप्टीट्यूड है वो मैच कर रहा है व्हाट यू लव. एप्टीट्यूड होना बहुत जरूरी है जो जिसमें आप अच्छे हैं. तो सेकंड थिंग इज एप्टीट्यूड, आपका उसमें अच्छा होना बहुत जरूरी है. जैसे एक प्रॉब्लम आती है 10th क्लास में बच्चों को, बच्चे के मार्क्स नहीं आते बट उनको बनना होता है डॉक्टर एग्जांपल ले दो, क्योंकि इसमें ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि मुझे बायो चाहिए और जो मार्क्स देखते हैं बायो में आ रहे हैं 55% मार्क्स, साइंस में 55% मार्क्स आ रहे हैं,
और बंदा डॉक्टर है, तो क्या हुआ उसको अच्छा तो लग रहा है डॉक्टर बनना, उसने कैरियर सोच लिया या किसी से इन्फ्लुएंस होके हो गया या उसकी फैमिली में एक डॉक्टर है, बट वो अच्छी नहीं है उसमें या अच्छा नहीं है उसमें, तो वो कर पाएगा, सक्सेसफुल हो पाएगा? क्योंकि उसका पैशन ही नहीं है। पैशन में 4 पॉइंट चाहिए। फर्स्ट इज व्हाट आई लव टू डू, व्हाट मेक मी हैप्पी। सेकंड क्या है, व्हाट आई एम गुड एट, क्या वो मैं उसमें अच्छा हूं, क्या मुझे अच्छा से करता हूं मैं, उसमें मेरे मार्क्स आ रहे नहीं आ रहे। थर्ड जो इंपॉर्टेंट थिंग है, व्हाट एनी गेसेस? व्हाट? Okay, good. Is it give me some financial gain? क्योंकि everybody want money to live, सबको पैसा चाहिए, basic requirement के लिए need money. मैं ऐसा काम कर रहा हूँ कि जो पैशन है वो अच्छा भी हो, उससे मुझे पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, फाइनेंशियली गेन होगा नहीं होगा, that is also very important. Be practical about that. Okay. तो third is, am I getting money out of it? People are going to pay for that. People are going to give me some reward. People are going to give me financial gain. I will get it. मैं अपनी फैमिली को चला पाऊंगा, जितना होगा सब जॉब ही करता हूँ. ओके. अब जैसे कि कोई फिशरमैन कोई है जो उसको फिश पकड़ना अच्छा लगता है, वो उसमें अच्छा भी है, पकड़ भी लेता है, उसको मजा भी आता है, सारा दिन बैठ के करते रहे, लेकिन तो वहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, वहाँ पर वो फिश तरह की सेल ही नहीं होती. मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो वो फाइनेंशियली गेन है ही नहीं, क्योंकि वो इतनी नहीं वो फिश निकाल सकता जो सेल होके अपनी अर्निंग हो सके. अगर अंडरस्टैंड एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो आपको फाइनेंशियल गेन होना चाहिए. फोर्थ इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट इज इट गोइंग टू ऐड वैल्यू टू पीपल लाइफ? क्या ये लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे या उनको नुकसान करेंगे? एग्जांपल, नेगेटिव एग्जांपल लेता हूँ. मुझे ना मेरे को चोरी करना बहुत अच्छा लगता है. किसी के बैग में से कुछ निकाल लेते हैं, किसी पॉकेट में से मैं निकाल लेता हूँ. मैजिशियन हूँ मैं. कोई भी पर्स है, किसी की पर्स निकालता हूँ, मोबाइल निकाल लेता हूँ, लेकिन पता नहीं चलता. मेरे को मजा भी बहुत आता है. तो आई एम गुड एट, बहुत अच्छा मैं स्किल है मेरा, तो आर्ट है मेरे अंदर पॉकेट मारने की, और अच्छा भी बहुत लगता है जब मैं पर्स खोलता हूँ. इस मोबाइल मिल गया मुझे, ये मिल गया, जो भी मिल गया. ओके, जस्ट कीप क्वाइट, लिसन. ओके. और मुझे पैसे मिल गए, लेकिन चौथा फैक्टर क्या है? वो चौथा फैक्टर ये पूरा होगा इसमें, इज इट एडिंग वैल्यू टू पीपल लाइफ? ये लोगों को नुकसान कर रहे हैं. किसी की चोरी हो गई, किसी का मोबाइल चोरी, किसी का पर्स चोरी हो गया, और मैं चोर बन गया, किसी का मैंने रॉबरी कर ली, कुछ भी कर लिया, तो वो वैल्यू ऐड नहीं करेगा. तो मेरा वो पैशन नहीं है. पैशन है लेकिन मुझे करना नहीं है. ओके. तो हाउ मेनी सीन दैट मनी हाइस्ट किसने देखा है? वो वेब सीरीज जो है ऑलमोस्ट काफी ने देखा होगा. तो क्या वो उनका उसको रिलेट कर पा रहे? उसका पैशन था चोरी करना, वो अच्छा भी चोरी करने में था, पैसे भी उसको मिल गए, लेकिन इट वाज नॉट एडिंग वैल्यू. तो वो चोर नहीं बनना आपने. मनी हीस्ट का जो आजकल ना मनी से बड़े इंस्पायर्ड है कि वो इतना कमा लिया, इतनी अच्छी चोरी कर ली, इतना माइंड लगा के चोरी करी उसने. एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. बहुत मजा आया. आई हैव टू सी दैट. उसमें बहुत मजा आया उस वेब सीरीज को देखने में, लेकिन वो हमें बनना नहीं है, क्योंकि उसमें फोर्थ जो हमारा पैशन जो एलिमेंट है, दैट इज द सेम. इट इज नॉट एडिंग वैल्यू टू पीपल. तो उसमें वो कौन सी जर्मन की कंट्री होती है, मतलब वो गोल्ड जो होता है सारा ले लेते हैं और आर्टिफिशियल गोल्ड दे देते हैं. तो कंट्री की इकोनॉमी में कितना उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा. तो वो वैल्यू ऐड नहीं करी, वैल्यू सबट्रैक्ट कर दी. तो हमें ये भी नहीं करना है कि नेगेटिव चीज नहीं करना. तो 4 एलिमेंट का ध्यान रखना है. यू हैव टू डिसाइड योर पैशन. अब एवरीबॉडी राइट ऑल दिस 4 पॉइंट्स. अब लिख लीजिए. आई गिव यू 2 मिनट्स टाइम. रिटन अब रीड आउट कर लीजिए. एवरीबॉडी कैन रिकॉल इट. आप रीड कर लीजिए. वेट फॉर अ मिनट. Yes, children, stand up and welcome our Shivam sir. Good afternoon, Shivam sir. You have been round of applause for sir also. Shivam sir. Thank you, children. Please carry. Okay, just everybody will see that. इसका नहीं वो लिख सकते हैं. So, in order to identify something as a
passion, there are 4 points in mind that you should keep in mind. The first one is happiness. Does it bring me joy? Do I really love to do it? What I love to do, what make me happy, what give me joy, what is the thing which I forget everything. मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, खाना, पीना, सोना सब भूल जाता हूँ. Okay? The second one is, am I really good at it? क्या मैं उसमें अच्छा हूँ? क्या मेरा एप्टीट्यूड है? क्या मैं वो स्किल मेरे अंदर है, वो टैलेंट है मेरे अंदर जो मैंने पैशन सिलेक्ट किया है. Third one, will it bring me any financial gain? Is my pocket going? Is my financial capability is going to allow? Can I make it as a bread and butter in my life? क्या मैं उसको bread and butter बना सकता हूँ? क्या उससे मेरी लाइफ अच्छी मूव करेगी? एंड फाइनेंशियल जो है वो आप पे डिपेंड करता है. हाउ मेनी हैव सीन द मूवी 3 इडियट्स? उसका पैशन होता है फोटोग्राफर बनना, अच्छा भी उसमें होता है, और उसको उसके जो पेरेंट्स को बोलते हैं कि पैसे कितने कमाएगा. जब आपके फ्रेंड गाड़ी में घूम रहे होंगे, आप बाइक में जा रहे होंगे, तो इस तरह कुछ होता है, तो क्या आप वो कहता है मैं खुश रहूंगा, कम कमाऊंगा, खुश रहूंगा, तो उसकी आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना कमाना चाहते हो. आप अगर इससे खुश हैं और आपके बाकी 3 एलिमेंट उससे कवर अप हो रहे हैं, देन इट्स ओके. मतलब फाइनेंशियल वाला पार्ट है, इट डिपेंड्स अपॉन यू कि कितनी आपकी रेंज है, कितना आप चाहते हैं. तो थर्ड जो पॉइंट है इसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना देके बाकी 3 को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है. ओके, नेक्स्ट. And the last but not the least, is it going to add value in life of other people as well? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. चोर नहीं बनना है, उसके बदले आपको डिटेक्टिव बन जाइए. अगर आपका माइंड बड़ा शार्प है, स्किल है, तो डिटेक्टिव बन सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं, या कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं, लोगों की काउंसलिंग कर सकते हैं. मतलब द थिंग इज यू हैव टू डिसाइड. तो 4 एलिमेंट आपके इंपॉर्टेंट होने चाहिए. एंड दिस होमवर्क आई एम गिविंग यू, आपको 10 चीजें वो लिखनी है which you can make as a career, या वो एजुकेशन से रिलेटेड है, एकेडमिक से रिलेटेड है. 10 चीजें जो आपको अच्छी लगती है, जिससे लग रहा है कि आप अपना कुछ करियर बना सकते हो, या उसको आप एज ए करियर परस्यू कर सकते हो, या उसको आप उससे आपको जॉब मिल जाएगा, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो. यू ऑलरेडी 12th क्लास, आपको एंटरप्रेन्योर तो आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं उस चीज से. तो आपको 10 वो चीजें लिखनी है. ठीक है, अब एग्जांपल लूंगा. 10 चीजें वो लिखनी है रिक्रिएशनल. अब जैसे म्यूजिक है, म्यूजिक इस कैटेगरी में जाएगा. आपका पैशन म्यूजिक है, आपको डांस करना अच्छा लगता है, तो किस में जाएगा ये? रिक्रिएशनल में जाएगा. वो इधर नहीं आएगा. हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग जो पैशन, 2 टाइप ऑफ पैशंस आर देयर. वन इज फॉर आवर ब्रेड एंड बटर एंड वन इज फॉर द फन एंड रिक्रिएशन, हॉबी. अब ये है कि आपको जो रिक्रिएशनल वो स्विच हो सकता है बाद में, 12th के बाद. क्या सपोज मान लो आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, आप म्यूजिक में अच्छे हैं, डांस में अच्छे हैं, तो आप उसमें अपना करियर बना सकते हो, पढ़ाई कम करके वो कर सकते हैं. जैसे श्रीकांत है, ही हैड डन इंजीनियरिंग, उसने इंजीनियरिंग करी है, लेकिन लेटर ही बिकम क्रिकेटर. अपना पैशन को उसने, रिक्रिएशन पैशन को उसने अपना प्रोफेशन बना लिया. बट बेसिक स्टडीज तो करनी है, ग्रेजुएशन तो करनी है, तो ग्रेजुएशन से पहले रिक्रिएशनल को जैसा आप साथ लेके चलिए, क्योंकि सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली बहुत कम है. आई वाज जस्ट वाचिंग द वीडियो व्हाट्सएप में, मैं वीडियो में देख रहा था कि जितने भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं ओलंपिक्स के, एशियन गेम्स के, उतने दे आर ऑल पुअर पीपल. दे आर कोई भिखारी बना हुआ है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है. इंडिया में थोड़े सा ये चैलेंज है कि हम रिक्रिएशनल को, जब तक हमारा बैकअप नहीं है, मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करती, तब तक मैं उसको रिक्रिएशन को अपने इस वाले कॉलम में ना लूं. अरेंड से यहाँ पर आपको एकेडमिक से रिलेटेड लिखना. मैं एकेडमिक पे भी आऊँगा आपका जो है, और इधर रिक्रिएशनल में आप समझिए, रिक्रिएशनल में तो आपके पास बहुत सारी चीजें होंगी लिखने के लिए. एकेडमिक के लिखने के लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा. ओके, तो एग्जाम्पल आप दीजिए, व्हाट यू आर गोइंग टू कीप इट राइटिंग academic, what you are going to write in recreation. Example दीजिए. Yes. Okay. One thing I will make it clear, क्या आपको अच्छा लगता है, किसमें अच्छे हैं,
इंजीनियरिंग जो है दैट इज अ गोल, अब पैशन से हम गोल निकालेंगे। अब कंप्यूटर में भी काम करना अच्छा लगता है, वो आपका पैशन है। अब पैशन से हम इसका गोल सेट करेंगे। अभी आप ये नहीं लिखेंगे इंजीनियर डॉक्टर, नहीं लिखेंगे, ऑथर नहीं लिखेंगे, शेफ बनना है तो वो नहीं लिखेंगे। अच्छा शेफ कहां पर आएगा? आपका रिक्रिएशन में आएगा या यहाँ पर आएगा? रिक्रिएशन में आएगा। तो आपको समझ आ गया सारा। डांस कहां पर आएगा? मैथ्स मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये भी रिक्रिएशन में लिख रहा है। हाँ कोई बात नहीं, रिक्रिएशन में आप लिख दो अच्छी बात है, बट रिक्रिएशन को आप लोग एडमिट नहीं लिखना है। ओके, अंडरस्टैंडिंग द थिंग? मैथ्स अगर अच्छा लगे दोनों में लिख सकते हैं। ओके, और बताइए, और एग्जांपल दीजिए। कैसे? मुझे स्केच करना, ड्राइंग बनाना अच्छा लगता है। मुझे पैशन, आर्किटेक्ट बनना गोल होगा। मुझे घर देख के मुझे उसमें डिजाइनिंग करना अच्छा लगता है। मुझे देख के बड़ा लगता है कि ये यहाँ पर जो पिक्चर है ये ठीक ही लगी हुई है, या ये पिलर जो अगर इधर होता तो ज्यादा अच्छा होता। मतलब आपका माइंड जो वहां चल रहा है, तो आपको क्या लिखेंगे? आप आर्किटेक्ट जो बनना चाहते हैं उसकी क्या स्किल होनी चाहिए? उसकी ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, और इमेजिनेशन अच्छी होनी चाहिए। तो आप क्या लिखेंगे? माई पैशन इज टू विजुअलाइज, टू मेक स्केचेस। ब्रैकेट मतलब उसको लिख लेंगे, बाद में आपको माइंड में तो होगा कि मैं आर्किटेक्ट के लिए लिखा मैंने। तो नोबडी इज गोइंग टू राइट एनी प्रोफेशन, यू आर गोइंग टू राइट व्हाट यू क्या उससे रिलेटेड क्या आपको अच्छा लगता है, यू कैन राइट दैट। और बताइए, क्रिकेटर, मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, मुझे बैट बॉल खेलना अच्छा लगता है। वो पर्टिकुलर क्रिकेट ही लिखेंगे। क्रिकेटर बनना आपका रिक्रिएशनल में गोल होगा। ये कहां पर जाएगा आपका? और बताइए, राइटिंग स्टोरीज। ओके, राइटिंग स्टोरीज जो है उसके लिए क्या सब्जेक्ट चाहिए? राइटिंग स्टोरीज के लिए राइटिंग स्टोरीज आपको लिखना अच्छा लगता है, इंग्लिश में, हिंदी में? इंग्लिश में। तो आपको राइटिंग स्टोरीज जो है किस में लिखेंगे? रिक्रिएशन में लिखेंगे या किस में लिखेंगे? लेकिन आप यहाँ पर पैशन में क्या लिखेंगे? आई लव टू राइट और रीड इंग्लिश। लिटरेचर मुझे अच्छा लगता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कि हम अब इसमें थोड़ा सा कहीं जगह डाउट आएगा, क्योंकि ये जो अगर आपका राइटिंग आपको अच्छा लगता है, लिखना अच्छा लगता है, तो आप उसको एकेडमी में भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो सब्जेक्ट से रिलेटेड है, और इधर भी लिख सकते हैं, दोनों जगह लिखेंगे आप। जहां पर आपको कंफ्यूजन हो रही है रिक्रिएशनल में, तो उसको दोनों तरफ, उसको आप एकेडमिक में हो रही है तो उसको वहां भी लिखिए। लेकिन ये एकेडमिक में जाएगा और रिक्रिएशन दोनों में जाएगा। और अगर आपका, जब हम पैशन टेस्ट करेंगे, अगर दोनों एक ही आ गया, देन दैट्स वेरी गुड थिंग। अगर आपका पैशन टेस्ट करेंगे, अगर पहली प्रायोरिटी आपकी इधर से इंग्लिश आ गया, इधर से आ गया राइटिंग स्टोरीज, और वो आ गया, दोनों अगर वन प्रायोरिटी आ गई, तो आपके लिए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा कि आपका जो पैशन है, जो रिक्रिएशनल है, वही आपका प्रोफेशन बन गया। ओके, और बोलिए। लव टू रीड, क्राइम, लव टू रीड क्राइम डॉक्यूमेंट, इंग्लिश में, इंग्लिश। ओके, इसको किस में डालेंगे? लव टू राइट, लव टू रीड, लव टू क्राइम डॉक्यूमेंट देखना, वॉचिंग, तो ये रिक्रिएशन में जाएगा। और ये रिक्रिएशन में जाएगा, ये आपको चेक करना है कि ये मेरा कंपैशन है, पैशन है या ऑब्सेशन है।
ओके, आई विल टेल यू दैट, क्योंकि आप जब लिखेंगे ना तो ये जो पर्सन है इनको वो क्राइम जो होते हैं ना क्राइम वाले सीआईडी और ये बहुत अच्छे लगते हैं, ब्रॉडकास्ट अच्छे लगते हैं। तो आप ओके एवरीबॉडी जस्ट बी अलर्ट, नॉट टॉकिंग। अब वाचिंग डिटेक्टिव सीरियल या पॉडकास्ट में वाचिंग किस तरह की देखते हैं आप? मर्डर, इसको रिक्रिएशन में लिख देते हैं कोई बात नहीं। अच्छा, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, रिक्रिएशन में भी आपको देखना, जैसे इनका बड़ा डिफरेंट है कि मर्डर मिस्ट्री सॉल्व कैसे करते हैं, वो देखते हैं कैसे मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करी। जैसे कि ये चार्ल्स शोब्राज, इस तरह की डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगती है। चार्ल्स शोब्राज की, ओबामा की तारीख अच्छी लगती है। ये जो स्टैंड अप लास्ट सेकंड लास्ट हुआ है, अब खड़े हो जाइए आप। हाँ, खड़े हो जाइए। दिस इज स्टैंड आउटसाइड, आप बैठिए, आप पीछे खड़े हो जाइए, नो आउटसाइड। चल लिसन, बिकॉज़ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई एम डिस्कसिंग विद यू, क्योंकि ये आपकी लाइफ बनाएगा। अगर अच्छे से इसको फॉलो कर लिया, देन यू विल बी अप हियर। अगर नहीं किया तो मेडियोकर लाइफ जिएंगे, एंड देन डोंट ब्लेम द स्कूल, टीचर्स एंड पेरेंट्स, हमें गाइड नहीं किया। बी फोकस ऑन व्हाट आई एम शेयरिंग विद यू। बीच में थोड़ा हम करेंगे, बट ठीक है, डोंट टॉक ऑन दिस। इफ यू वांट टू शेयर समथिंग, you can share with me or share with everyone, but no side talking, okay? अगर ये डिटेक्टिव चीज, जो कोई भी चीज है, वो है रिक्रिएशन में, बट यू हैव टू आइडेंटिफाई इसकी वजह से क्या मेरी रूटीन की चीजें डिस्टर्ब तो नहीं हो रही। सपोज मान लो मैं सीआईडी क्राइम या जो चार्ल्स शोब्राज या ओबामा की मैं वीडियो देख रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्री देख रहा हूँ, जहाँ पर मिस्ट्री सॉल्व करते हैं। ऐसी मूवीज भी बहुत आती हैं, बॉलीवुड मूवी आती है, हॉलीवुड मूवीज आती है, जिसमें हम अच्छी लगती है कि वो क्राइम और वो डिटेक्टिव शेप आती है, इस तरह की मूवी अच्छी लगती है आपको? मूवी भी अच्छी लगती है। आई डोंट लाइक मूवीज, हाँ, ये जो स्लैंग है, ये जो आई लाइक ओनली पॉडकास्ट। ओके, एनी ऑफ द थिंग इज दैट कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये मेरा कंपैशन है। आप कंपैशन छोड़ दिए, इसमें कंपैशन नहीं लाएंगे। पैशन है या ऑब्सेशन है? पैशन तब तक है जिस उससे मेरे को लर्निंग मिल रही है। आई एम लर्निंग, मेरा माइंड थोड़ा शार्प हो रहा है, मेरे माइंड इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ रहा है, मुझे सोच मेरी बढ़ रही है, आई एम ग्रोइंग, मेरा माइंड एक्सपैंड कर रहा है, तो दैट इज द पैशन। अगर वो सपोज मानो उसकी वजह से मैं रात को सो नहीं पा रही हूँ, उसकी वजह से मैं पढ़ाई छोड़ के, काम छोड़ के मैं सारा दिन मैं पॉडकास्ट देखते जा रही हूँ, मुझे 1 घंटा देखना है, मैं 5-5 घंटे देख रहा हूँ, मुझे रात को नींद नहीं आ रही है, और जैसे वेब सीरीज आती है 2 एपिसोड देखने में होता है कि अगली भी देख रहे हैं, वो तब तक रात भर देखते रहते हैं जब तक खत्म नहीं होती। तो वो पैशन नहीं है, दैट इज ऑब्सेशन, जिसकी वजह से मेरी रूटीन में डिस्टर्बेंस आ रही है, मेरी नींद खराब हो रही है, मेरी पढ़ाई खराब हो रही है, मेरे रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, मैं टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहा, क्वालिटी टाइम फैमिली के साथ, फ्रेंड से बात नहीं कर रहा, सारा दिन मैं पॉडकास्ट में लगा हुआ हूँ या वेब सीरीज देख रहा हूँ। तो दैट इज व्हाट ऑब्सेशन। ये आइडेंटिफाई करना है, और ऑब्सेशन है तो उसको हटा दो, उसको पैशन की रिक्रिएशन पे नहीं लिखना आपने। ओके, पैशन है और राइट इट डाउन। अब उससे आपकी ग्रोथ हो रही है, उससे लर्निंग हो रही है। क्या पता आप डिटेक्टिव बन जाओ, क्या पता पुलिस में चले जाओ, आईपीएस क्लियर कर लो। ये आईपीएस में माइंड बड़ा शार्प चाहिए होता है, और ऐसे केस हिस्ट्रीज आती है जिसमें वो पूछते हैं कि अगर ये केस हुआ तो कैसे आप सॉल्व करोगे। अगर आपका पहले ही आपने ऐसी चीजें करी होगी, देखी होगी, तो आपका माइंड शार्प हो चुका होगा। तो आईपीएस आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, तो इसको आप रिक्रिएशन में लिख सकते हैं अगर वो ऑब्सेशन नहीं है। और वो आपका, अगर आपका मैच हो जाता है पैशन के साथ और आपका नंबर 1 आ जाता है रिक्रिएशन में, तो फिर आप उसको स्विच भी कर सकते हैं, उसमें आईपीएस के साथ रिलेट कर सकते हैं। तो
आपको आईपीएस बनने के लिए दैट विल नो गोल की बात पैशन में आप लिखेंगे कि मुझे लोगों की कोई भी चीजों को सॉल्व करने में मजा आता है। मैंने किसी की प्रॉब्लम सॉल्व किसी की प्रॉब्लम होती है, जैसे दोनों की लड़ाई हो गई, अब किसने पहले मारा किसने बाद में मारा या किसने मारा किसने नहीं मारा, इसमें आप इन्वॉल्व होके अगर आप अच्छे से उसको सॉल्व कर देते हो तो यू कैन वीक रेशियो को आप मार्केट में कर सकते हो। क्लियर का आईपीएस एग्जाम, पुलिस एग्जाम भी होगा क्या, पुलिस में तो उसके लिए फिजिकल आपको अपने बॉडी आपको आर अंडरस्टैंडिंग कि आप रिक्रिएशनल और जो एकेडमिक से रिलेटेड आपका जो पैशन है उसको कैसे हैंडल करें। ओके, तो वी हैव 10 मिनट्स मोर टाइम, 10 मिनट का टाइम है। तो आपका पैशन की अब ये आपने क्या करना है, आपने दो कॉलम बनाने हैं, एकेडमिक्स लिखना है और आपने इधर रिक्रिएशन लिखना है एंड यू आर गोइंग टू राइट मिनिमम 10। और नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू डू पैशन टेस्ट। आई विल एक्सप्लेन यू द पैशन टेस्ट कैसे करना है, फिर एक दूसरे का पैशन टेस्ट आप करेंगे क्योंकि सबका आपको इंडिविजुअल कर नहीं पाएंगे। तो आई विल एक्सप्लेन हाउ टू डू दैट। जैसे 5 मिनट्स इनको देंगे, 5 मिनट्स इनको देंगे, पहले 5 मिनट में ये इनका पैशन टेस्ट करेंगे, अगले 5 मिनट में आप पैशन टेस्ट करेंगे। देन वी आर गोइंग टू टेक 1 or 2 पैशन टेस्ट हिस्ट्री, केस स्टडी हम लोग डिस्कस करेंगे और आपको क्लियरिटी हो जाएगी। फिर उसके बाद हम पैशन टेस्ट करने के बाद वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द गोल, उस पैशन से गोल बनाएंगे। ओके, तो अब तक हमने क्या डिस्कस किया हम उसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं और नेक्स्ट टाइम भी हम रिव्यू करेंगे व्हाट आर वी डिस्कस। तो यू कैन और इफ यू वांट 10 मिनट्स टाइम टू राइट इट डाउन, आपको 10 मिनट टाइम चाहिए लिखने के लिए जो आपने करा, पहले शेयर कर लेते हैं 5 मिनट, उसके बाद आप 5 मिनट दे विल बी हियर ओनली, दे विल गोइंग टू राइट इट डाउन व्हाट दे आर लर्न टुडे सो दैट यू कैन रिकॉल रिव्यू इन द एंड। ओके, तो पहले हमने क्या डिस्कस किया, पर्पस। ओके, पर्पस के अंदर हमने क्या क्या डिस्कस किया, मैं आपको ना कीवर्ड पूछ रहा हूँ, कीवर्ड। ओके, हैप्पीनेस के बारे में बात करी, हैप्पीनेस। उससे पहले हमने बात करी स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क। ओके, फिर हमने क्या बात करी, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करी, एक्सेप्टेंस की बात करी, सेल्फ डिसिप्लिन की बात करी, कंपैशन की बात करी, माइंडफुलनेस की बात करी, कमिटमेंट की बात करी, हैप्पीनेस की बात करी, कॉन्शियस माइंड की बात करी, सबकॉन्शियस माइंड की बात करी, अनकॉन्शियस माइंड की बात करी। 1% to 2% वी आर रूटीन में हम लोग यूज करते हैं। आइंस्टाइन की बात करी, उसने कितने यूज करा, 6 to 7%, और हमें 5% तक लेके जाना है so that we can get good marks in our board exam। और क्या बात करी हमने, फिर हमने अभी पर्पस से रिलेटेड और क्या बात करी, पर्पस इज make ourselves happy and others happy by adding value to people's life and our life। और people कौन-कौन से close है, तो कैसे value add करनी है, by getting good marks। उसके बाद हमने किस बारे में बात करी, फिर हम आ गए पैशन पे, पर्पस एंड पैशन पे आए। पैशन को हमने दो चीज में डिवाइड करना है, रिक्रिएशनल और एकेडमिक्स में। रिक्रिएशनल में जो होंगे वो आपकी जो हॉबीज हैं, जो आपको अच्छा लगता है और जिसमें आप अच्छे हैं, जिस रिक्रिएशन को तो छोड़ दो, उसमें आपको अच्छा लगता हुआ है और जिसमें आप अच्छे हैं वो ले लो। उसमें फाइनेंशियल वाला थर्ड पार्टी आएगा और ऐड वैल्यू भी होगा। क्योंकि मैंने किसी डांस में एक गेम खेलते हैं, बहुत अच्छा लगता है, स्लैप गेम। आई थिंक नेट में बहुत सारी चीजें ऐसे आती रहती है, तो वो रिक्रिएशनल नहीं है। दैट इज द फोर्थ जो है कि लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं किसी को। बहुत सारी ऐसी रिक्रिएशनल चीजें हैं जो हमें अच्छी लगती है लेकिन दूसरों को हर्ट कर सकती है। मैं पिछले वीडियो में देखा था, वो कहते हैं एक को जंप कर और दो खड़े होते हैं, पैर मारते हैं, वो नीचे गिर जाते हैं। दैट इज अ गेम, रिक्रिएशनल गेम, बट लेकिन कितना हर्ट होता है उसकी
उसकी फ्रैक्चर भी हो सकता है। अच्छा, आई डोंट नो, बहुत सारी गेम्स खेलते हो आप, तो उसको रिक्रिएशन मत देखना, ओके? स्पेशली बॉयज। एक जो गेम आप क्या कहते हो, बैग जो होता है, बैग खाली करके किसी के ऊपर डाल दिया, उसको तो वो क्या करेंगे, हर्ट करेंगे, ओके? तो रिक्रिएशन आपको पता चल गया। अच्छा, एकेडमिक्स का थोड़ा एग्जांपल ले लें। आपको मैथ्स के सॉल्व करने अच्छे लगते हैं सम, ये किसमें आएगा? ओके, मुझे स्केचेस, मुझे ड्राइंग बनाना बहुत अच्छा लगता है। ओके, मुझे इंग्लिश में पोएम लिखना बहुत अच्छा लगता है। रिक्रिएशन में वो होगा, ओके? लेकिन बाद में वो स्विच हो सकता है आफ्टर 12 इन प्रोफेशन। और अगर आपके पेरेंट्स का बैकअप है, वो आपको बिना काम करे एक साथ बिठा सकते हैं, तो आप उसको प्रोफेशन बना सकते हैं, ओके? तो नेक्स्ट क्या है, आपको एग्जांपल दीजिए एकेडमिक से रिलेटेड जो है। अकाउंट करना बहुत अच्छा लगता है, पैसे काउंट करना बहुत अच्छा लगता है, पैसे देख के बड़ा अच्छा लगता है, तो वो किसमें जाएगा? एकेडमिक में जाएगा। आई लव टू काउंट मनी, आई लव टू फाइनेंस, आई लव टू और बताइए एकेडमिक में क्या आएगा? इसमें प्रोफेशन ही आएगा। आई लव अकाउंट भी डाल सकते हैं आप, आई लव इंग्लिश, दैट कैन बी द एकेडमिक। तो उस इंग्लिश से हम लोग आपको उसका गोल सेट करेंगे, ओके? और बताइए, हाँ, पब्लिक स्पीकिंग कहाँ आएगा? रिक्रिएशन में आएगा। लेटर यू कैन मेक इट एज टेड टॉक, किसमें आएगा? रिक्रिएशन में आएगा। और लेकिन उसके साथ आप अगर सुनते हैं तो आपकी इंग्लिश भी अच्छी होगी, तो आप इंग्लिश में भी डाल सकते हैं। टेड टॉक इधर लिखिए, आई लव टू वॉच इंग्लिश प्रोग्राम। रिक्रिएशन से आप उसको बोल दीजिए। ओके, वन थिंग मोर, हम लोग रिक्रिएशन से भी बेस्ट, हम लोग जो पैटर्न टेस्ट करेंगे, 3 आपके एकेडमिक में से गोल सेट करेंगे और 3 रिक्रिएशन से करेंगे। तो जनरल टेड टॉक का आपका है, तो रिक्रिएशन से आपका एक रिक्रिएशन आपका गोल बनेगा कि आई वांट टू बी ए टेड टॉक स्पीकर। Any queries, any confusion, any clarity you want? Every child should come with, when we are going to the next session, everybody is going to come with 10 passion and interest. So now we are going to give you 5 minutes time. Whatever we have shared with you, whatever discussed with you, if you want to write it down, and after 5 minutes then. Okay, thank you very much. Thank you. Now let's conclude the day by thanking our honorable and respected chairman, Dr. Inder Malik sir, for this amazing and charismatic presence which made today special. Thank you sir for today's seminar and all the ones you have taken so far. I am sure each one of us has learned something motivational today from your knowledge and experience. A big thank you to respected Shibam sir for your valuable time that you gave us. We promise to implement these values and rituals in our life and make our school proud. Let's give a huge round of applause to our IC. Thank you. Next time, whenever somebody give you guidance, somebody speak, or somebody give you knowledge, guidance, immediately after finishing, you have to clap. You don't have to follow instructions of the teacher. That also you can do it, but before that, you have to appreciate and acknowledge that person, so that he can give you more knowledge and more if you appreciate that person. So once again, within that I finish that. Thank you very much.